Hello everyone. Today we will discuss linear transformation. This is the topic of linear algebra. So this is the first part of linear transformations. Basically we will discuss definition of linear transformation. Generally a linear transformation is a map from one vector space to another vector space. We can say this is a function on vectors that preserves linearity. Linear transformation, also known as homomorphism of vectors spaces. This condition T A alpha plus B beta, also known as linearity property. अब जो बेसिक डेफिनेशन होती है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ linear transformation. Suppose UF and V over field F be the two vector spaces, then the mapping or transformation T from one vector space U to another vector space V is called a homomorphism or a linear transformation of U to V if transformation A alpha plus B beta equals to A into T alpha plus B into T बीटा. जो ये A और B हैं ये स्केलर्स हैं जो कि इस फील्ड के एलिमेंट होंगे, और जो अल्फा बीटा वो वेक्टर स्पेस U के एलिमेंट होंगे. दीज आर वेक्टर्स, दीज आर स्केलर्स, रियल नंबर्स, और ये वेक्टर्स हैं वो इस U के एलिमेंट होंगे. So this is the basic definition of linear transformation. Now, if T is homomorphism from U onto V, then V is also called homomorphic image of domain U. So this is the basic definition of linear transformation. Now, next part we will discuss here linear operator. So let VF be a vector space. Therefore a linear operator on vector space V is a function from V into vector space V. We can say V into V itself, such that this condition holds true. So if T is linear transformation from V into itself, then that is a linear operator. This is the basic definition of linear operator we have discussed here. Next we are considering here the mapping. So this is the mapping to space over reals R2 to R defined as this one is a linear transformation. We want to show that this definition holds on this mapping. This is linear transformation. So because we are here, this is the question, R2 to space 2 this is also R2. This is the modification of, so this is R2 to R2 defined as T alpha is a linear transformation. So alpha is this one and beta is this one, belongs to R2, this R2, and AB be the real numbers,
Using this definition and using these vectors alpha and beta, t a alpha plus b beta, यानी अल्फ़ा की जगह पर हम उठा के ये रख देंगे, बीटा की जगह पर ये रख देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा. अब डेफिनेशन ऑफ टी लगाएंगे तो यूजिंग डेफिनेशन ऑफ दिस टी अल्फा बीटा इक्वल्स टू अल्फा कॉमा 0. इफ वी आर यूजिंग दिस डेफिनेशन then what we have, so this is the basic definition t a1 plus b b2 इस तरह से आएगा. On applying here the definition given here, this definition this is the basic definition, alpha beta goes to alpha comma 0. So upon applying this definition here, second coordinate will be 0, so first coordinate will be as such here. Upon applying transformation on this one according to our definition, so this coordinate will be here as such and second coordinate will be 0 according to our definition of t. So we can write here definition of t, which is given here. T alpha beta is alpha comma 0 here. Alpha beta equals to alpha first coordinate and second coordinate is 0. So we are adjusting this one as t alpha and plus b t beta. Therefore this linearity property holds true. This is a linear transformation. Next we will discuss here another example. So function b3 r to b2r, here 3 space 2 space overlaps. So this is the definition. We are here taking here, this is the basic definition, and we will use this definition for generalizing और फाइंडिंग द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए हमको इस डेफिनेशन का बेसिक इस्तेमाल करना होता है. सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन फॉर ऑल ए बी सी बीटा real numbers. Is a linear transformation from, we have to show that here this is a linear transformation. This is a linear transformation from this one to this one. So because this is the 3 tuple, so we will take here alpha and beta accordingly. हम अल्फा और बीटा को यहाँ पर accordingly assume कर लेंगे, और एज्यूम करने के बाद हम यहाँ पर इस मेथड पहले तो हम कोशिश कर लेते हैं इस मेथड से समझने का, कर लेते हैं. अगर इसमें करने में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो हम इसको दूसरे मेथड से भी ट्राई कर लेंगे. जो बिगिनर हैं उनको हो सकता है इससे प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इसमें दूसरे मेथड को भी यूज़ कर लेते हैं. तो मेथड 1 को यहाँ पर सपोज ए बी बी द रियल नंबर्स, तो टी ट्रांसफॉर्मेशन or t a alpha plus b beta will be here. Alpha and beta we are considering e1 b1 c1 and e2 b2 c2 respectively. इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो a का a के साथ मल्टीप्लिकेशन एंड एटसेट्रा, एंड प्लस b का इसके साथ एंड. जब हम इसमें कोऑर्डिनेट्स को a1 प्लस ba2 रेस्पेक्टिवली जोड़ते जाएंगे तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये मिल जाएगा. तो अब हम इसमें डेफिनेशन ऑफ t जो दे रखी है इसका बड़ा ही इसमें रोल होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने में. ये जो डेफिनेशन होती है इसको बेसिकली काफ़ी अफेक्टिव वे में यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर टी दिस इज़ द डेफिनेशन, इसको नोट कर लेना होगा. उसके बाद प्रॉपर्टी लगाते हैं, जो मेथड आपको एक्चुअल में समझ में आ रहा हो उसको हम कर लेते हैं. सो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन एंड वी आर अप्लाइंग हियर. डेफिनेशन ये कह रही है कि यहाँ पर जो 3 टपल है वो 2 टपल में ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद कन्वर्ट हो रहा है. तो यहाँ पर भी हम लोग इसमें वही यूज़ करने वाले हैं. इसमें 1 2 3, तो यहाँ पर जो पहला दूसरा कोऑर्डिनेट है वो एज सच आ जाएगा, और तीसरा जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पर नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन. ये डेफिनेशन का मतलब यहाँ पर ये है. सो जो तीसरा कोऑर्डिनेट यहाँ नहीं आने वाला है तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे. सो a1 ab1 लिख सकते हैं, प्लस का सिंबल इस तरह से. सो दिस इज़ आवर स्टार इक्वेशन, और इसमें से हम a कॉमन लेके b कॉमन लेके इस तरह से लिख सकते हैं. फिर इसमें इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करके ये वाला, क्योंकि a1 b1 इक्वल टू टी ट्रांसफॉर्मेशन a1 b1 c1 हो सकता है, प्लस सिमिलरली इस तरह से हो सकता है. तो यहाँ पर ये
ये इसको लिख सकते हैं ए टी अल्फ़ा प्लस बी टी बीटा। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन का यूज़ किया, सो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन, अल्फ़ा टी अल्फ़ा प्लस बी टी बीटा हो गया। और ये जो कंडीशन हो जाती है ए टी ट्रांसफॉर्मेशन ए टी अल्फ़ा प्लस बी टी बीटा इक्वल्स टू ए टी अल्फ़ा प्लस बी टी बीटा, अगर ये होल्ड हो जाती है ट्रू, तो टी जो ट्रांसफॉर्मेशन इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम गिवन वेक्टर स्पेस टू गिवन वेक्टर स्पेस। हियर वी थ्री टपल ओवर रियल्स टू टू टपल्स ऑफ रियल्स के वेक्टर स्पेस पर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से ये मेथड 1 से हम लोग इसको डायरेक्टली वे में अगर एज्यूम हो सकता है और सॉल्व हो सकता है, अगर प्रैक्टिस है तो इससे हो सकता है। अगर इसको करने में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर सिंपल दूसरा मेथड भी है, और उसी को थोड़ा तोड़ मड़ोड़ के इसको थोड़ा इजी वे में टूटी फूटी फॉर्म में इसको अप्लाई किया हुआ है। मेथड वही है, कोई विशेष नहीं करना है इसमें, कोई इक्वेशन थोड़ा अलग अलग इक्वेशन बना के उनको LHS RHS का नाम दे देंगे और क्या है। सो यहाँ पर देख लेते हैं मेथड 2 इज़ हियर, सो ए अल्फ़ा प्लस टी बी बीटा। सो इसको हम लगा लेते हैं, ये हमारे पास स्टार इक्वेशन आया था यहाँ पर, टी ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा। जो इक्वेशन आया है ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाला इक्वेशन, ये स्टार इक्वेशन ये है AA1 AB1 प्लस BA2 BB2, ये स्टार इक्वेशन यहाँ पर आया था। अब हम यहाँ पर एक इक्वेशन ये आ गई हमारी। अब हम क्या करने वाले हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी ए अल्फ़ा और टी बी बीटा की वैल्यू अलग से निकाल लेंगे, और जो वो की अगर इसके बराबर आ जाती है ऐड करने पर, तो हम कह देंगे ये इक्वेशन और जो हमारी इक्वेशन आ रही है तो दोनों बराबर है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। दिस इज द बेसिक थिंग हियर। तो जो लोग इसको थोड़ा सेपरेट करने में मुश्किल कर रहे हैं, समझ रहे हों, तो उनके लिए इस तरह से भी एक तरीका है। इसको एक स्टार इक्वेशन मान लिया, सो इसको कह सकते हैं LHS। अब हम वर्क कर लेंगे RHS में। सो ये टी ए अल्फ़ा प्लस टी बी बीटा को अलग अलग फाइंड आउट कर लें। टी ए अल्फ़ा प्लस, सो दिस इक्वल्स टू ए टी अल्फ़ा, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लग जाएगा। और ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा लगने वाला है यहाँ पर, सो यहाँ पर ये वैल्यू रख दी, तो इसी पर डेफिनेशन यूज़ कर लिया, तो इस तरह से आ गया, दिस इक्वेशन 1 कह दिया। इसी तरह से टी बी बीटा जो है, टी बी बीटा दिस वन, इक्वेशन 2 आ गया। अब हम अगर इन्हीं को इस इक्वेशन को और इसको हम ऐड कर दें, तो हमारे पास ये आ रहा है, ये आ गया, जो कि डबल स्टार कह देंगे इसको नाम। तो ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है बराबर आ गए, यानी ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर आ गई, ए टी अल्फ़ा प्लस बी टी अल्फ़ा। सो यहाँ पर फाइनली कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इक्वल्स टू ए टी अल्फ़ा प्लस बी बीटा। तो अगर ये दोनों इक्वेशन, ये वाली और ये वाली यहाँ से दिख रही है बराबर है, तो इसको कह सकते हैं ये दोनों बराबर हैं। तो हमारा काम यहाँ पर इस तरह से भी एक टी को हम शो कर सकते हैं, टी से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इन दोनों मेथड से उम्मीद है दोनों ही मेथड सिंपल से हैं। आप लोग जो इसमें आपकी प्रैक्टिस हो वो करके इसको समझ सकते हैं और क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा यहाँ, वो है प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं इसमें करना क्या है। सो दैट द मैपिंग ट्रांसफॉर्मेशन R2 to R3 डिफाइंड बाई दिस इज द डेफिनेशन इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल वही जो अभी मेथड डिस्कस किया है, उसी मेथड को अप्लाई करते हुए यहाँ 2 स्पेस 2 3 स्पेस 1 2 3 1 2 2 स्पेस 2 3 स्पेस रियल्स के लिए ये डेफिनेशन दी है। इसमें आप स्केलर वेक्टर लेके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इजीली शो कर सकते हैं। अगर इसको मैट्रिक्स इस ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो करने में कोई प्रॉब्लम, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। वैसे जहाँ तक इतना है, इतना डिस्कशन के बाद इसको आप इजीली सॉल्व करने में कामयाब होंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।